اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی تھی، سر بھاری ہو رہا تھا۔ خالی رہن سے ماں نے چند پل چھک کو دیکھا اور پھر رونے کی آواز پر گردن گھما کر اپنی ماں کو، وہ کڑکتے سہمتے ماں کی آغوش میں چھپ گئی۔ یکدم ہر چیز رہن کے پردوں پر رونا ہونے لگی تھی۔ وہاں کا ہر خشک ہوا، ہر کوئی وہاں موجود تھا سوائے آرزو خان کے۔ میری بچی ٹھیک ہو تم؟ ماں کے سر کے کنارے پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ صفیہ بیگم آنسو صاف کرتے ماں کا چہرہ ممتا سے تھامے بولی جو خوف سے سہمی ہوئی تھی، ماں بیٹا وہاں کیسے پہنچی؟ جمشید خان بیڈ کی دوسری سائڈ آ کر بیٹھ گئے۔ ہر کوئی اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ ماں کو لگا جیسے حلق میں کانٹے اگ آئے ہو، اسے اس لمحے بولنا سزا لگ رہا تھا۔ بابا وہ نیند؟ مجھے نہیں پتا، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ جمشید خان نے لب بھینچ لیے، وہ انہیں سب سچ بتا دینا چاہتی تھی۔ وہ ماں کی آغوش میں جی بھر کر رونا چاہتی تھی، لیکن الیگزینڈر کی دھمکیوں نے ماں کا سارا کانفیڈنس بریک کر دیا تھا۔ وہ ہلکے سے لرز گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اب آپ ریسٹ کرو، میں CCTV فوٹیج سے دیکھتا ہوں، جمشید خان نرمی سے بولے، جبکہ ان کی بات سنتے ماں کی آنکھیں خوف سے پھر گئی۔ اگر انہوں نے سب دیکھ لیا وہ کیا جواب دے گی؟ وہ کیوں گئی تھی وہاں؟ ہاں ریسٹ کرو، میرا بچہ شام کو عائشہ کی مہندی بھی ہے نا؟ صفیہ بیگم ایک بار پھر محبت سے اس کا ماتھا چومتے بولی۔ آہستہ آہستہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ باہر عائشہ کی مہندی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ گھر کو پیڑے اور وائٹ پھولوں سے سجایا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سب اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، جبکہ ماں بس اسی سوچ میں تھی کہ وہ کیا بتائے گی جب 14 میں اسے خود باہر جاتا دیکھا جائے گا۔ آرزو بی بی یہ آپ کے لیے خط؟ فیروزہ نے ایک خاکی لفافہ آرزو کی طرف بڑھایا جسے اس نے حیرت سے تھام لیا تھا۔ میرے لیے پر کس نے بھیجا اور اس دن میں خط؟ آرزو نے چونکتے لیٹر اوپن کیا تھا، جہاں بڑے الفاظ میں شروع میں اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ آپ بہت خوبصورت ہے آرزو خان، مجھ سے بات کرے پلیز، مجھے پیار ہو گیا ہے آپ سے۔ یہ بس چند الفاظ تھے جو خط پر گھسیٹے گئے۔ آرزو پڑھ کر حیران نہیں تھی، ایسا لیٹر اسے کون بھیج سکتا تھا؟ اس نے مروہ کے بارے میں سوچا اور فوراً اسے کال کی۔ پہلے ہی میرا موڈ بہت خراب ہے مروہ، اب کیا تم میرے ساتھ چھچورے لڑکوں والا سیٹ بناؤ گی؟ آرزو کال کرتے ہی بھڑک کر بولی۔ دوسری جانب مروہ حیرت سے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہن اتنی بھی تو حسین نہیں کہ میں تیرے ساتھ سیٹ بناؤ، ہوا کیا ہے؟ مروہ سکون سے بولی۔ آرزو نے لیٹر کی طرف دیکھا، وہ واقعی مروہ کی ہینڈ رائٹن نہیں تھی۔ جلدی میں وہ یہ دیکھنا تو بھول ہی گئی تھی۔ یار ایک لیٹر بھیجا ہے کسی نے مجھے۔ آرزو لیٹر کو الٹ پلٹ کر دیکھتے بولی۔ مروہ بھی حیران ہوئی تھی۔ ویٹ، آرزو نے فون کان سے ہٹا کر دروازے پر ہوتی دستک کو دیکھا، لیٹر جلدی سے کتاب میں چھپایا اور دروازہ کھول دیا۔ فیروزہ ہاتھ میں ایک اور خاکی رنگ کا لفافہ پکڑے کھڑی تھی۔ آرزو نے حیرانی سے لفافہ پکڑا۔ مجھے پتا ہے آپ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، آپ کے ہونٹوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ میری محبت کی گواہ ہے۔ یہ ایک اور سطر تھی۔ آرزو نے حیرانی سے پڑھی اور دوسری جانب مروہ نے قہقہہ لگایا۔ یہ تو تیرا دیوانہ نکلا، مروہ ہنستے ہوئے بولی۔ آرزو نے موبائل کو کھولتے واپس کان کو لگایا۔ بکواس مت کر یار، پتا ہے کیا ہو رہا ادھر، اگر کسی نے لیٹر کو دیکھ گیا تو سب مجھے غلط سمجھے گے کیونکہ میں نے انکار کیا تھا، رشتے سے سب یہی سمجھے گے، مجھے کسی اور سے نوبت تھی۔ آرزو پریشانی سے بولی۔ مروہ بھی اب فکر مند ہوئی تھی۔ بھیجنے والے کا نام نہیں لکھا کیا؟ مروہ اب سیریس انداز میں بولی۔ آرزو نے لفافہ الٹ پلٹ کر دیکھا نہیں۔ آرزو لب کچلتے ہوئے بولی۔ مروہ نے ہنکارا بھرا۔ شاید ہی ہو جانے دے، سکون سے پھر دیکھتے ہیں اس دیوانے کو، تب تک تم دھیان رکھنا، مروہ اسے تسلی دیتے بولی۔ اور آرزو نے ہم کہتے فون رکھ دیا، لیٹر اٹھا کر فسکس کی کتاب میں رکھ دیا۔ اب اسے تیار ہونا تھا۔ عائشہ کی مہندی کے لیے اس گھر میں یہی آخری خوشی بھرے لمحے تھے، اس کے لیے جنہیں وہ گنوانا نہیں چاہتی تھی کسی بھی لیٹر کے عوض۔ ماں تم ٹھیک ہو؟ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ سب آرزو سے کھینچے سے تھے۔ آرزو کو تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ لب بھینچے پھر ماں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، پر خود بھی مہندی لگانے لگی۔ لان میں ہی فنکشن کا انتظام تھا، چند قریبی رشتے دار تھے، کمبائن فنکشن تھا۔ عائشہ پنک اور گرین کلر کی فراق میں بالوں کی چوٹی بنائے آگے ڈالے، ہلکے کھلکے میک اپ میں ہاتھوں پر مہندی لگائے بیٹھی تھی، اور میراج اس کے قریب بیٹھے اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے اسے گھبرانے پر مجبور کر دیتا، اس کے چہرے پر لاٹھی بکھر گئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، ماں جھکے سر سے بولی۔ وہ دونوں مہندی لگا رہی تھی۔ اس کے بعد کسی نے ماں سے کچھ بھی نہیں پوچھا، اس کی طبیعت خرابی کے چلتے۔ آرزو نے ہم پر اکتفا کیا تھا۔
मेहंदी मुकम्मल होते वो वहां से उठती अंदर की जानिब बढ़ी। उसका जहन अब भी लेटर पर अटकता था। कौन हो सकता था और क्यों भेज रहा था उसे ऐसे लेटर? बेखैरी नहीं, फर्श पर गिरे पानी पर उसका पांव खसला और वो लड़खड़ा कर आगे की जानिब गिरने लगी थी, लेकिन उससे पहले सामने आने वाले शख्स भी दिल के मकान पर हाथ रखते वो तकरीबन गिरने से बची। उसने सर उठाकर बहरहाल के होते चेहरे को देखा। वाइट करते वो उस वक्त बड़ा हंसम लग रहा। उसकी नीली आंखें किनारों से सूख पड़ने लगी। गर्दन नीचे की उसने अपने करते की जानिब देखा। वो अभी अभी ऊपर से रेडी होकर आया था। सोरी। आयरजो ने अपना हाथ उठाया और मेहंदी से भरा हाथ बेजाई देखा था। दानियाल के दिल के मकाम पर कुर्ते पर छप गया। आयरजो ने दांतों तले लब दबाए। अंधी हो गई हो तुम, या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये क्या क्या तुमने? दानियाल उसकी कलाई जकड़े वसे से फनकारा। आयरजो ने लब भेजे। गलती से हो गया, आप भी तो देख सकते थे ना, आप अंधे तो नहीं थे। एक लेटर की टेंशन ऊपर से दानियाल का वसा करता लहजा आयरजो का दिमाग घूमा गया। सब कुछ उसके साथ हो ही दानियाल सफीर खान की वजह से रहा था। जबान संभाल कर बात करो आयरजो खान, वरना मैं जबान काट कर हाथों में थमा दूंगा। वो इसकी कलाई झटकते बोला। आयरजो को अपनी कलाई में दर्द उठता महसूस हुआ। इतना वसा क्यों कर रहे हो? सोरी बोल रही हो ना, या फिर ये वसा किसी और बात पर है? चचित चचित, आप एक लड़की से रिजकट हो गए। तई इस बात का वसा तो नहीं? आयरजो तरस खाते लहजे में तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोली। दानियाल के माथे पर 3 बल नमूदार हुए। वो सख्त वस्से से उसे घूर रहा था। बकवास बंद करो अपनी, तुम मुझे क्या रिजकट करती? मैं खुद तुम्हें घर की नौकरी से ज्यादा हैसियत नहीं देता। उसका उन दबूचे वो शुलाबार नजरें उसके चेहरे पर दौड़े बोला। आयरजो ने वसे से उसकी जानिब देखा था। बद दमाग लड़की। वसे से उसका चेहरा छोड़े वो वापस ऊपर की जानिब बढ़ गया, जबकि आयरजो ने वसे से उसकी पश्त को घोरा और कमरे में चली गई। वाशरूम में जाते हाथ धोए। मेहंदी तो अब खराब हो चुकी थी। आज का दिन ही खराब है। उसने वापस से वो लेटर उठाई, उन्हें अच्छे से देखा। अचानक एक कोने में उसे कुछ नजर आया था। आयरजो ने ध्यान से देखा तो वहां अंग्रेजी हर्फ भी लिखा हुआ था। आयरजो ने चौंक कर दूसरा लेटर देखा, वहां भी लिखा था। तो क्या उसका नाम बी से शुरू होता था जिसने ये सब भेजे? आयरजो आ जाओ डांस करे। लेजे की आवाज पर आयरजो ने जल्दी से खत वापस फसफस की किताब में रखे और बाहर की जानिब बढ़ गई। आयरजो तुम शादी के लिए मान जाओ तो तुम हमेशा यही रहोगी। बाहर की जानिब जाते लेजे ने अफसरदगी से कहा। आयरजो ने एक नजर उसे देखा। इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है। मैं शरीफ बंदी हूँ। मैं माहर के हक की तरफ नहीं देखना चाहती। आयरजो हंसते हुए बोली। लेजे ने अफसोस से सर हिलाया। वो जानती थी आयरजो तकलीफ में है, लेकिन किसी को बता नहीं रही। सब लोग जो उससे नाराज थे, हती कि उसकी माँ भी, तो वो कैसे खुश हो सकती थी? सब लोगों ने काफी एंजॉय किया था। आयरजो भी बजाय सब भले डांस करती रही, सब कुछ छेड़ती रही, लेकिन घर वालों की खामोशी उसे शिद्दत से छप रही थी। मेहंदी का फंक्शन तमाम हो गया। रात के 1 बजे सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। खूबसूरत लग रही थी। हाँ, आयशा को देखते मिराज ने गर्दन झुकाते आहिस्ती से कहा। वो दोनों पलक के पास खड़े थे। सर्द हवा उनको छोकर गुजर रही थी। आज की रात है, फिर मैं आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा। मिराज झकते उसकी गाल पर अपनी बड़ी रगड़ते बोला। आयशा के जिस्म में संसी सी दौड़ गई। शर्म से पलकें भारी हो गई। आपकी खामोशी नहीं चलेगी। तब वो हाथ की पश्त से उसकी सुर्ख पड़ती गाल को सहलाते बोला। आयशा के लबों पर हल्की मुस्कुराहट थी। हाँ है ना, हाँ है ना। जरा खनकारते लेजे ने उन दोनों का ध्यान अपनी जानिब करवाया। बड़ी ममा बोल रही है आयशा को कि वो रेस्ट करे, सुबह बहुत खास दिन है ना मिराज भाई, फिर आपके कमरे में ही पाई जाएगी। ये लेजे लब दबाए बोली। मिराज ने सर को खम दिया, जबकि आयशा सराइब से उसके करीब से निकलती लेजे के साथ आगे को बढ़ गई। उसने पलटकर मिराज की मुस्कुराती नजरों में देखा और फिर सर झुकाए वो अपने रूम में चली गई। मिराज भी वहां से अपने कमरे में चला गया। बटरफ्लाई। बेड पर लेटे वजूद को देखते अलेक्जेंडर ने अपना नकाब उतार कर साइड टेबल पर रखा और हेड भी उतार दी। उसने एक नजर वहां को देखा जो उसी दरिस में सो गई थी। हल्के पीले और व्हाइट कलर के कंट्रास्ट फराक में बालों को खुला छोड़े उसका नाजुक सरापा वाजा था। आधा कम्फर्टर उस पर था और आधा जमीन पर खड़े बाल तकिए पर बिखरे थे और चेहरे पर हल्का खौफ था। वो उसके करीब जाते उस पर किसी घटा की मानिंद छा गया। ये बटरफ्लाई। उसके माथे को चूमते वो मध्यम आवाज में बोला। खुद पर बोझ महसूस करते वहां ने मंदी मंदी सी आंखें खोल कर देखा और फिर खौफ से उसकी आंखें पूरी वाह हुई थी। कैसे उसके अल्फाज भी कहीं खम हो गए जब अलेक्जेंडर ने शिद्दत से झकते उसकी शहादत पर अपने मुंह रखे थे। माँ की हार्ट बीट तेज हुई थी। जनोरो मुझे में बाबा को बुलाती हूँ।
माह नम लहजे में बोली। अलेक्जेंडर ने उसके सजे सुनहरे रूप को देखा। हेजलदरीन आंखों को देखते माह की धड़कनें तेज हुई थी। वो आंखें हमेशा उस पर मसरत होती थी। ठीक है, आज ससर साहब से भी मिलकर जाते हैं, वो सुकून से बोला। माह की बैकबोन में सरसराहट हुई थी। मुझे मारने की कोशिश भी, वो रोते हुए बोली। अलेक्जेंडर ने उसके माथे पर बंदी पट्टी को देखा और नरमी से झटते वहां अपने लब रख दिया। मैंने बताया था, बटरफ्लाई तुम्हें मारने के लिए ही वहां बनाया था, मैं मजाक नहीं करता, वो सर्द आवाज में बोला। वहां की सांस हलक में रटकी उसे लगा था वो वैसे ही उसे डराने को बोल रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कर रहे हो ये सब, वो नम आंखों से बोली। अलेक्जेंडर के लबों पर इस्तेज़ा मुस्कुराहट उभरी। बस यूं ही राह चलते तुम अच्छी लगी मुझे, वो कंधे अटका कर बोला। माँ ने हैरत से फैलती आंखों से उसे देखा। वो साफ झूठ बोल रहा था। खैर छोड़ो इन सब बातों को, बटरफ्लाई बहुत खूबसूरत लग रही हो, मुझे मारने का इरादा है। आंखों में चमक लिए वो उसके चेहरे पर झपकते बोला। माँ सख्ती से लब भेज गई। वो आहिस्ती से झपकते उसके कंधे पर अपना पुरतपश लफ्ज़ छोड़े उसकी कान की लो को दबों से दबा गया। दानिया, माँ जोर से चलाई। वो जानती थी तो इस वक्त सिर्फ दानियाल ही जा रहा होगा। मधुशी ने उस पर झके। अलेक्जेंडर ने सुर्ख होती नजरें उठाकर हंसते हुए उसे देखा। डरा रही हो मुझे बटरफ्लाई, कितनी हिम्मत, उसके लबों को हल्के से काटते वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला। वहां ने शदीद वसे से उसे घोरा। दानियाल मेरा मंदीतर है, शादी होने वाली है, मेरी उसे। माँ इस मर्तबा हिम्मत करते बोली। अलेक्जेंडर ने चंद नजरों से उसे देखा। अच्छा फिर तो सबसे पहले उसकी मौत आनी चाहिए, चलो आ लेने दो उसे। बूट से रिवाल्वर निकालते अलेक्जेंडर बेड पर बैठते बोला। उसकी आंखें सुर्ख पड़ रही थी, जबकि चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती थी। वहां का दिल खौफ से बंद होने लगा। वहां तुम चैन फिकीर, दानियाल दरवाजा बजाए बोला। और अलेक्जेंडर ने दानत कचकाते रिवाल्वर का रुख दरवाजे की तरफ किया। वो अब माँ को सख्त नजरों से देख रहा था। नो प्लीज, वो रोते नफी में सर हिला दे। मुझे नफरत में भी अपनी चीजें दूसरों के पास पसंद नहीं, मैं उन्हें बर्बाद कर देता किसी दूसरे को देने के बजाय। माँ के बाद बैठी में जकड़े वो लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करते बोला। माँ को अपने बालों में दर्द उठता महसूस हवा आंखों से कई आंसू फंसल दे। माँ ठीक हो तुम, दानियाल की फिर से आवाज बुबली थी। अलेक्जेंडर ने सख्त नजरों से माँ को देखा। जी वो नींद, मुझे एक बुरा ख्वाब आया था, मैं ठीक हूँ, अब आप जाए। माँ सस्पियों का गला घोंटते बोली। अलेक्जेंडर के हाथों में अब भी माँ के बाल मजबूती से जकड़े हुए थे। ओके, दानियाल इतना कहकर वहां से चला गया, जबकि अलेक्जेंडर ने माँ के बालों को छोड़ते उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपनी जानिब खींचते उसके लबों को कैद किया था। माँ की आंखें मतीर हुई, जबकि अलेक्जेंडर अपनी सारी वहशतें माँ के होंठों पर बैठा गया। वो उससे दूर होता रिवाल्वर की नोक माँ की थोड़ी पर टका गया। मुझसे दगा की एक ही सजा है, नोक। वो गन से उसकी थोड़ी पर दबाव देते सख्त बर्फीले लहजे में बोलता। माँ की रूह फना कर गया। बटरफ्लाई अलेक्जेंडर नाम है मेरा, एक कलर हूँ मैं, और लोग मुझे डेडली गैंगस्टर के नाम से जानते हैं। मैं तबाह कर देने के लिए मशहूर हूँ। खामोशी से वही करो जो मैं कहता हूँ। तन अपने कोट में रखते वो दबाव देते लहजे में बोला। माँ ने नफी में सर हिलाया तो अलेक्जेंडर ने तिजोरी चढ़ाए उसे देखा। तुम्हारे डैड के पास एक बड़ो कलर की फाइल है, मुझे वो किसी भी तरह लाकर दो, वरना तुम्हारे डैड की जमानत नहीं देता ने। वो बेड से उठते वापस से हेड पहनते बोला। माँ ने रोते हुए उसे देखा। वो खामोशी से माँ के कमरे से खिड़की के तरफ निकल गया। माँ ने भागकर खिड़की बंद की थी। वो बेड पर बैठते फूट फूट कर रो दी। अलेक्जेंडर तो फिर डील फाइनल करते हैं, लेकिन वो कमिश्नर, उसका क्या करोगे? वो हमेशा तुम पर ताप लगाए बैठा होता है। वो लोग एक अंधेरे कमरे में थे, जहाँ जर्द बल्ब वास्ते से रोशनी पहुंचाने से कासर था। अलेक्जेंडर की कर्सी के सामने मेज था और दूसरी जानिब दो लोग बैठे थे। मेज पर तरह तरह के हथियार पड़े हुए थे, जिनकी डील अलेक्जेंडर कर रहा था। ये हथियार कमिश्नर के डिपार्टमेंट के ही है। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसकी बहुत कीमती चीज मेरी बेटी ने है। अलेक्जेंडर साइड समाइल चेहरे पर सजाए बोला। इन आदमियों ने सर को असबार में हिलाया था। वो कि ये लो आधी रकम, बाकी की रकम इनके मतलूबा जगह पहुंचने के बाद तुम्हें मिल जाएगी। उन्होंने एक बैग मेज पर रखा। कासिम ने आगे बढ़ते बैग उठा लिया। अलेक्जेंडर उनसे हाथ मिलाते पलट गया। ये सारा सामान लोड करवाओ और हाँ, गलती मत करना, संजीदा सर भरी आवाज में कहते वो वहां से बाहर निकल गया था। कासिम ने उसकी पश्त को घूरा।